So today we'll discuss about the how these electrons are distributed in a different orbits and different shells. So this was given by Bohr and Bury, these two scientists who contributed for this. Okay, arrangement in a different orbits. Bohr, okay, Bohr and Bury. Okay, so these two scientists, okay, they had given their contribution. Okay, the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by these two scientists, and the following rules are followed for writing the number of electron. Okay, so the rules that they were, what are the different rules? Okay, so we'll see that what are the different rules. Okay, so rules are followed for writing the number of electrons at different energy levels or shell. Okay, that different energy level. What is orbit or what is a shell? These are different energy level. Okay, अंदर वाली होगी जिसे हमने देखा. Okay, K, L, M, N. What these are? These are the shells. These are the orbits which possess some different energy. So the first rule is the maximum number of electron present in a shell is given by the formula 2n square. Okay, क्या है? Maximum number of जो electrons है, maximum number of electron. Okay, maximum number of electrons which will revolve. Okay, will be given by the formula that is 2n square. Okay, so with the help of this formula, for first orbit n will be equals to 1, for second orbit n will be equals to 2, for the third orbit n will be equals to, so like this, n is equals to 1, 2, 3. Okay, so and so on. Okay, depends on the number of orbits. Okay, depends on the number of orbits. Hence the maximum number of electrons in a different shells are as follows. Okay, so first orbit. Okay, we'll see first orbit. Okay, first orbit. So first orbit is K. Okay, K, L, M, N. So orbit that is in K shell. So K shell में क्या रहेगा? n is equals to 1 रहेगा, बराबर ना? K shell में क्या रहेगा? n is equals to 1 रहेगा. तो as per this formula ये क्या हो जाएगा? 2 into 1, that is square. Okay, so how many electrons will be present at the first orbit? First orbit में कितने number of electrons रहेंगे? So there will be a two number of electrons, as this is the first orbit. Okay, so second orbit. Okay, for second orbit के लिए, so we'll write down one by one. सेकंड ऑर्बिट के लिए, ओके, कौन सी शेल है? कल ड्रॉ किया था हमने बोर मॉडल. यस, यल शेल, बराबर है. यल शेल में n की क्या वैल्यू रहेगी? n की क्या वैल्यू रहेगी? 2 रहेगी. सो व्हाट वी कैन राइट डाउन? 2. ये देखो 2 इंटू n. n क्या है? n इज द 2 वैल्यू. सो 2 का स्क्वायर, व्हाट इज द square of 2? 4. 4 into 2, that is 8. Okay, so how many electrons will be present in a L shell? Total 8 number of electrons will be present. Okay, the third shell. Okay, third shell or third orbit is what? L and then m. Okay, m shell में n is equals to क्या रहेगा? 3 रहेगा. So 2 into 3 raised to power 2. So 3 is the 9. 9 into 2 is, okay, 18. Okay, how many electrons will be present in m shell? Total 18. Okay, electrons. Okay, 18 electrons will be present. Okay, so maximum number of electron based on maximum number of electron. Fourth orbit, we can write down fourth orbit. Okay, fourth orbit KLM, and the shell is n shell. Okay, so where n is equals to, okay, n is equals to 4. So 2 into 4 raised to power 2. So 32. So 32 number of elements. So like this, there will be the classification and so on. Okay, and so on. इसके भी आगे आप कर सकते हो. Okay, different K, L, M, N, like this shells में आप ये कर सकते हो. So this is the very first rule. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit. Okay, so maximum number of maximum number of electron can be accommodated in the outermost orbit. Okay, in outermost orbit.
ये रूल है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसी के बेसिस पे आप उसका क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करते हो। दिस इज नथिंग बट द जनरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन outermost orbit, so in outermost orbit it's 8। ओके, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं, ओके, लास्ट जो ऑर्बिट में, तो वो क्या रह सकते हैं, 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled। ओके, जब तक अंदर वाली शेल कंप्लीट फिल नहीं होती तब तक बाहर में इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरी शेल में नहीं आ सकता, बिकॉज दीज आर प्योरली बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल। Orbit or shells are completely classified because based on their energy level। okay, energy level के accordingly। okay, जब तक अंदर में एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं होता तब तक वो दूसरे वाले शेल में नहीं जा सकता। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस inner shells are filled, thus the shells are filled in a stepwise manner। okay, so what I will write down, filling of shell, so filling of electron in shell, filling of electron in a shell is stepwise manner। okay, कैसे होता है ये, stepwise manner होता है, stepwise manner। okay, stepwise manner में ये fill होता है, ऐसा नहीं कि पहले बाहर का fill हो गया और बाद में अंदर का, no। so they will fill in a stepwise manner। so these are the few rules। okay, these are few rules। atomic structure of the first 18 elements is shown schematically in a figure 4.4। आप लोग देख सकते हो। ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के लिए आप देख सकते हो। सो ऑल ऑफ यू लुक एट द पेज नंबर 50 एंड 51। देखो उस पे है एक टेबल दिया हुआ है 4.1। ओके, सब लोग बुक निकालो और देखो उसमें टेबल नंबर 4.1 देखो। ओके, सो लुक एट द 4.1 में टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट। चलो हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके, तो एक दो ड्रॉ करते हैं हम लोग। सो कंसीडर दिस द हाइड्रोजन एलिमेंट, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन के लिए। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल है H। ओके, और उसके आउटर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उसका एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर इज इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन। ओके, वी कैन से इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है हाइड्रोजन का, पढ़ो आप लोग, उसमें दिखाई दे रहा है सब लोगों को, यस दिखाई दे रहा है क्या टेबल नंबर 4.1 में। compare composition of atoms of first 18 elements with electron distribution, that is called as electronic configuration बोलते हैं इसको। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो किसका ड्रॉ कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो हाइड्रोजन में कितना है, 1 है। तो देखो ये क्या रहेगा, ये न्यूक्लियस रहेगा। और देखो हाइड्रोजन के लिए मैंने कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, व्हाट इज दिस, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। दूसरा लेते हैं ओके, हेलियम। हेलियम में यस, हेलियम, हेलियम में ये मैंने उसका क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ड्रॉ किया। ओके, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो चलो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो आप लोग। ओके, और ये एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हो गया। ओके, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम। लिथियम में कितना है, लिथियम में कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन टेल मी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3, बराबर है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो। ओके, तो ये कौन सी शेल होगी बताओ मुझे, ये कौन सी शेल होगी, जो ओके, सो जो ये फर्स्ट वाली शेल हो बोल सकते हो आप लोग इसको। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व द schematic atomic structure of the first 18 elements। okay, then in this way the we will draw lithium। okay, sorry, lithium, lithium में देखो, lithium में थोड़ा सा करेक्ट करते हैं हम लोग उसको। ओके, सो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। ओके, उसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, वो एक्चुअली 3 ड्रॉ कर लिया था हमने गलती से। ओके, सो 2 आएंगे, वाई 2 विल बी देयर फर्स्ट शेल। ये देखो फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं। और जो जो दूसरा वाला जो शेल रहेगा, दूसरा वाला शेल रहेगा उसमें 1 चला जाएगा। ओके, अभी क्लियर है।
समझ में आया अभी? ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, क्योंकि जो जो शेल है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते, ओके, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते, ओके, दैट इज व्हाट द केस, ओके। हीलियम के लिए हो गया, लिथियम के लिए हो गया, बेरिलियम, ओके। तो इन दिस वे यू कैन ऑब्जर्व, ओके, बेरिलियम के लिए, ओके। सो अभी हम लोग डायरेक्टली किसके लिए ड्रॉ करेंगे, किसमें 8 नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस 8, ऑक्सीजन के लिए, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, नियॉन के लिए देखो, ऑल ऑफ यू लुक एट द नियॉन, ओके, नियॉन, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल, नियॉन के लिए व्हाट इज द एटॉमिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ नियॉन? नियॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, देखो, नियॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर है ना? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? यस, आर यू लुकिंग एट द चार्ट और नॉट? चार्ट नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ, आपको थोड़ी नहीं याद है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10, बराबर है। देखो एटॉमिक नंबर ब्लू कलर में ऊपर पर्पल कलर में लिखा हुआ है, ओके। देन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 नंबर ऑफ 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और देखो उनका जो अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एन, बराबर है। तो देखो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे? के शेल में। तो के शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 ही आते हैं। कितने आते हैं? 2 ही आते हैं, ओके। सो एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं, ओके। सो इन दिस वे यू लुक एट दिस नियॉन, नियॉन का कितने हैं? ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, ओके, अंदर में ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, के शेल में हो गए। देन यल शेल में हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे, कितने नंबर ऑफ है? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay, so this is the structure for the neon, okay। जैसे ही नियॉन से हम लोग सोडियम में जाते हैं, ओके, सोडियम में जाते हैं, दैट इज Na, ओके, सोडियम में जाते हैं। सो सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, बराबर है। क्या है सोडियम का एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? अरेंजमेंट कैसे करते हैं? देखो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फर्स्ट शेल, बराबर है। देन 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नेक्स्ट शेल, ओके। और बाद में कौन सा है? और एक बच गया तो देखो एक आएगा, ओके। तो देखो उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ओके। तो बीच में न्यूक्लियस है, ओके, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस, ओके। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 हो गया, बराबर है। और लास्ट वाले में इसमें देखो फिर से क्या होगा? एक इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो इन दिस वे इन योर बुक यू चेक फिगर नंबर 4.4, ओके, कैसे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए till 18 elements, atomic structure of first 18 elements is shown in the diagram, आप देख सकते हो, बराबर है। सो इन दिस वे यू विल ड्रॉ, फर्स्ट वाले शेल में, फर्स्ट वाले इसमें 2 ही आते हैं, ओके, दूसरे वाले इसमें 8 आते हैं, बाद में 18 32 लाइक दिस, ऐसे आते हैं। सो हमें सिर्फ 18 एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है, ओके। आगे क्या है वो हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। सो द make a static atomic model displaying electronic configuration of the first 18 elements. The composition of atoms of first 18 elements is given in the table 4.1, आप देख सकते हो। हम लोग फिर से एक बार इस टेबल नंबर 4.1 को देखते हैं, एक बार ओवरव्यू करते। लुक एट द टेबल नंबर 4.1, क्या दिया गया है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम, ओके, एलिमेंट्स के नाम, देन उनके एटॉमिक नंबर, उसका क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया गया है। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी दिया गया है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? लुक एट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो वो सिमिलर है क्या
एटॉमिक नंबर के साथ फॉर 18 एलिमेंट, चेक करो एटॉमिक नंबर सिमिलर है ना, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर सिमिलर, ओके ओके, ये एटलीस्ट इस चार्ट के लिए। देन लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो सिमिलर है क्या एटॉमिक नंबर से? एटॉमिक नंबर से सेम सेम है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? चेक करो, सिमिलर है सब सारे, ओके सिमिलर है। अभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, क्या वो सिमिलर है क्या एटॉमिक नंबर से? नहीं है, ओके सो वो सिमिलर नहीं रहेंगे, ओके सो क्योंकि कल ही देखा हम लोगों ने न्यूट्रॉन के बारे में, कल हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? दैट द न्यूट्रॉन, ओके, these particles had no charge and a mass nearly equals to that of proton, not exactly, okay, वो इसका जो मास होता है नियरली इक्वल्स होता है प्रोटॉन के जैसा, बट एग्जैक्टली नहीं। तो आप देख सकते हो, ओके नंबर ऑफ जो, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन के वो डिफरेंट है, ओके डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द concept, okay, of valency, but before that you check for हाइड्रोजन के लिए देखो एटॉमिक नंबर कितना है 1, ओके हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 1, सो राइट डाउन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, ओके सो एटॉमिक नंबर इज 1, atomic number is 1 for the hydrogen, okay so now their distribution of electrons, okay distribution ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होगा, एक ही है इलेक्ट्रॉन तो वो आएगा सिर्फ 1, ओके 1 इलेक्ट्रॉन। देन हाइड्रोजन के बाद हेलियम, ओके सिंबल से लिखता हूं मैं, हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, सो 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, ओके। देन लिथियम, हाउ मेनी एटॉमिक नंबर 3, सो ये हो जाएगा 2 and 1, ओके सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन, आप लोग लिख सकते हो लिथियम, ओके बेरिलियम, बोरॉन, like this you can write, okay, आप ऐसे लिख सकते हो। देखो इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना है 4, ओके इसके लिए 5 है, इसका 6 है, ओके इसका 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, ओके 13, ओके सिलिकॉन का 14, लाइक दिस, ओके तो देखो अरेंजमेंट कैसे करते हैं, पहले इसमें 2 ही आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने भी यहाँ पे शेल वगैरह नहीं लिखा बट आप लोग लिख सकते हो, सो 2 and 2 बराबर है। फर्स्ट बोरॉन के लिए 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके एटॉमिक नंबर 5 है, सो 3, 2 and 3, देन 2 and 4, ओके यहाँ पे देखो 2, ओके और ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 and 6 बराबर है, ये हो जाएगा 2 and 7 बराबर, 2 and 7, 7 + 2 9 हो गया बराबर है। देन 2 and 8 बराबर है, 2 and 8, बट जैसे ही सोडियम आता है तो 8 तो ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्या होगा 2, 8 and 1 बराबर है, 2 8, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ओके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। देन 12 के लिए आएगा 2, 8, 2 लाइक दिस, ओके देन 13 के लिए आएगा 2 + 8 is 10 + 3 13, ओके 2 + 8 + 4 लाइक दिस, ओके सिलिकॉन के लिए हो गया। देन फास्फोरस, ओके सल्फर, क्लोरीन, ओके क्लोरीन और आर्गन इतने ही हैं, ओके तो फास्फोरस का देखो एटॉमिक नंबर 15 है, इसका 16 है, इसका 17 है और इसका 18 है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा देखो 2 + 8 10 हो गया बराबर है, देन 5, देन 2 + 8 + 6, okay so like this 2 + 8 + 7 and this is 2 + 8 + 8, okay so in this way the configuration is, this is called as electron configuration। समझ में आया सब लोगों को कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को? तो
तो सारे इसमें देखो पहले क्या नंबर आया है 2 नंबर, ओनली मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वेरी फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, उसके बाद में 8 एवरी ऑर्बिट, सिर्फ फर्स्ट ही ऑर्बिट ऐसी है जिसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको छोड़ के बाकी के जो भी ऑर्बिट है ओके उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दैट वी विल स्टडी। ओके, सो समझ में आया सब लोगों को? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, दो नंबर ऑफ। Okay, so now we will understand, based on this we will understand the concept of valency. Okay, valency, next topic क्या है? Valency. So valency means what? The valence electron. Okay, valence electron से correlate करता है ये। Okay, so we'll write down valency. Next topic is valency. As the name suggests, valency, okay, so you can check in the table. So we have learned how the electrons in an atom are arranged in a different shell or orbit. The electron present in our outermost shell of an atom are known as valence electron. So before learning valency क्या होती है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि valence electron means what? Valence electron means what? Valence electron का meaning क्या होता है? The number of electron which are present in a last orbit, सबसे लास्ट वाली जो ऑर्बिट रहेगी उस एलिमेंट के लिए, ओके उस एलिमेंट के लिए जो ऑर्बिट है लास्ट वाली, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, so number of electron present, okay, so we'll write down the electron present in outermost shell, number of electron present in outermost shell, in outermost shell में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, so from the Bohr's and Bury we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा आ सकते। So it was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in outermost shell show little chemical activity. तो जिनमें क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि जिनके जो लास्ट वाले जो शेल है, लास्ट वाले शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं, ओके या फिर वो फुल रहते हैं, ओके जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, ऐसे कौन से एलिमेंट है जरा बताओ मुझे, इसमें बताओ आप लोग, टेबल में बताओ, टेबल नंबर 4.1 में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ओके जिनमें मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी फिल है? बताओ, 3 है ऐसे, फाइंड आउट 3 elements which are present in this table number 4.1 whose maximum capacity of valence electron is completely filled, वो filled है। ओके, देखो ऐसे कौन से दिखाई दे रहे? कौन सा दिखाई दे रहा है? नियॉन दिखाई दे रहा है, बराबर, नियॉन दिखाई दे रहा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 228। ओके, और हेलियम, यस हेलियम भी है। ओके, हेलियम में जैसे केल शेल की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम 2 है, बराबर, और वो 2 कहाँ पे फिल्ड है? ऑलरेडी हेलियम में है। सो आउटर मोस्ट शेल अगर देखोगे आप, हेलियम, ओके देन नियॉन बीच में है एंड लास्ट में है आर्गन। आप देखो कॉन्फ़िगरेशन, इसके 2 है, इसमें 2 एंड 8 है, इसमें 2 8 एंड 8 है। देखो लास्ट वाला शेल 2 है, कंप्लीटली फील्ड है, ओके 8 है कंप्लीटली फील्ड है, 8 है कंप्लीटली फील्ड है। तो इनको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट। क्यों इनर्ट बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर पाता है ज्यादा। ओके, सो रिएक्शन होने के लिए या फिर रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उसमें या तो थोड़े से कम चाहिए, ओके समझ में आया ना? वो फील्ड नहीं चाहिए। ओके, वो क्या चाहिए? वो क्या चाहिए? फील्ड नहीं चाहिए। एंड दीज आर कॉल्ड एज नोबल, ओके दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैस। ओके, इनको बोलते हैं नोबल
gases. So it was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. So they show little chemical activity, ज़्यादा chemical activity नहीं दिखाते ये, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी ये completely filled है. Okay, so their combining capacity or valency is 0. Okay, so their valency, अगर आप इनकी वैलेंसी चेक करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या, अकोमोडेट हो सकता है क्या, नहीं. देयर वैलेंसी इज 0, देयर वैलेंसी इज 0. ओके, so of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell, and all other electrons have atoms with 8 electrons in the outermost shell. बराबर है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, हीलियम में 2 है इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे नियोन एंड आर्गन में कितने हैं, 8 नंबर ऑफ electrons which are present in the outermost shell. So the combining capacity of the atoms of elements, that is their tendency to react and form molecules with atoms of same or different elements, was explained as attempt to attain a fully filled outermost shell. Okay, तो क्या होता है, अगर मान लो कोई एलिमेंट है, ओके, सो विल नॉट सी द एलिमेंट, अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7. ओके, देखो अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज लास्ट में कितने हैं, 7 नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, ये वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ वो पेयरिंग कर सकता है, किसके साथ, दूसरे एटम के साथ. अगर ये कोई एटम है, यक्स एटम है, यक्स एलिमेंट है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 8, 7 है, और एक वाई है, बराबर, एक वाई है, अगर मान लो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, सो आई विल टेक द एग्जांपल डायरेक्टली, सपोज 2 एंड 1 है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2 एंड 1 है, तो ये भी क्या कर सकता है, इसका जो एक 1 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है और ये कंप्लीट कर सकता है, बराबर. इसका जो ऑक्टेट है उसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना. ऑक्टेट ये क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, कैसे, एक नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से, वाई में से, ये लेके पेयरिंग कर सकता है. सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी. ओके, अभी आप इसमें चेक करो, इसमें तो कंप्लीटली फील्ड है, तो ये क्या, ये शेयर कर सकता है क्या अपना इलेक्ट्रॉन, नाइदर इट कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, नाइदर इट कैन टेक इट्स इलेक्ट्रॉन. समझ में आया, ना तो ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को, ना तो ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले सकता है. समझ में आया, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज, okay, elements, these elements who has completed or their valency is 0. okay, जिनकी valency 0 है उनको बोला जाता है little chemical activity. they are having very little chemical activity, but जिनमें कुछ वैलेंस प्रेजेंट रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ऑक्युपाई कर सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, 2, 8, 7 इज अ कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एक्स एलिमेंट, कोई भी, ओके, एक्स एलिमेंट, और दूसरा वाई एलिमेंट है, अगर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 2 एंड 1 है, तो इसका एक 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है. लाइक दिस कॉल्ड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कॉल्ड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड दिस वाज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, जैसे मैंने बोला, या तो ये शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ओके, दे भी सकता है, ओके, और पेयरिंग भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. दिस कैन बी डन बाय शेयरिंग, लूजिंग और पेयरिंग. ओके, तो ये क्या है, ये आपको बाद में समझ में आएगा कि शेयरिंग कैसे होता है. ओके, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, गेनिंग ऑफ, शेयरिंग, गेनिंग, ओके, एंड लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. So the number of electrons gained, lost or shared so as to make the octet of electron in outermost shell gives us directly the combining capacity of the element. Okay, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, the combining capacity of the element is purely depends on this number of electrons, कितने हैं उसके outermost shell में. Okay, so the valency discussed in the previous chapter, for example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain 1 electron
each in their outermost shell, therefore each one of them can lose one electron. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन में, ओके, देन लिथियम में भी आप देख सकते हो वो एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो ये हो सकता है, ओके, लूज कर सकता है. देन दे कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? आप देख के बता सकते हो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? चार्ट में देखो आप लोग, ऑल ऑफ यू लुक एट द चार्ट. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए देखो, फॉर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ओके, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड 13 रेस्पेक्टिवली, 12 एंड 13. तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 282 एंड 283. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में मैग्नीशियम के लिए? 2 number of electrons are present. For aluminium the 3 number of electrons are present, okay. So 2 and 3 respectively, because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminium has 3 valence electrons in its outermost shell. समझ में आप लोगों को what is the meaning of valence electron? Valence electron is what? The number of electrons which is present in the outermost shell. Last shell में, last orbit में कितने number of electrons है उसको बोलते हैं valence electron, okay. If the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way, okay. So now what is the meaning of valency? Okay, what is the meaning of valency? सबसे लास्ट वाला कॉलम चेक करो आप टेबल में पूरे, ओके. नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्चुअली वैलेंसी, ओके. क्योंकि अभी जो देखा हमने वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अभी वैलेंसी क्या है वो देखेंगे, अभी वैलेंसी के ऊपर आते हैं हम लोग. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, तो हम लोग एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सब लोग देख रहे हो क्या टेबल नंबर 4.1, ओके. अभी टेबल नंबर 4.1 में देखो हाइड्रोजन के लिए कितना वैलेंसी दिया है, हाइड्रोजन के लिए कितना वैलेंसी है टेबल में देखो, वैलेंसी लास्ट वाले, इसमें लास्ट वाले कॉलम में वैलेंसी लिखा हुआ है ना, लास्ट वाले कॉलम में, ओके. तो हाइड्रोजन के लिए कितना है, पहले तो हाइड्रोजन के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी, 1 हो जाएगी, बराबर है. हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी, नाउ आई एम टेलिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वैलेंसी, ओके. सो 1 क्या हो गया, वैलेंसी हो गई. देन नेक्स्ट हेलियम, हेलियम के लिए देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हेलियम के लिए 2 number of electrons are present, okay, 2 number of electrons are present. Now look at the valency, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, वैलेंसी क्या लिखा हुआ है लास्ट में, लास्ट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, बोलो वैलेंसी क्या लिखा हुआ है लास्ट में, लास्ट वाले कॉलम में नहीं, हेलियम के लिए, हेलियम के लिए 0, 0 क्यों लिखा है, वैलेंसी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी, 0 है ना, वो कंप्लीट है, बराबर है ना, उसका जो उसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो क्या है, कंप्लीट है, फील्ड है, इट इज कंप्लीटली फील्ड. और कंप्लीटली फील्ड होने के कारण ना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, नाइदर इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, नाइदर इट कैन गेन, ओके, गेन और लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. समझ में आया ना, ये ना तो शेयर कर सकता है, बराबर है, क्योंकि दैट्स व्हाई द वैलेंसी इज रिटन एज 0. वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग अबाउट वैलेंसी, ओके. तो देखेंगे हम लोग. देन नेक्स्ट लिथियम के लिए देखो, लिथियम के लिए, लिथियम के लिए लुक एट फॉर लिथियम, लिथियम के लिए सबसे पहले आप उसके इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. देन 2, ओके, लिथियम के लिए 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो एक काम करते हैं हम लोग उसको फिर से ऐसे लिखते जाते हैं कि आपको समझ में आए. इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons for hydrogen is 1, for helium is 2, for lithium is 3, okay, number of electrons. और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, वो सिर्फ ऐसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, 1 हियर इट विल बी 2, ओके. और लास्ट वाले कॉलम में मैं लिखता हूँ वैलेंसी, लास्ट वाले कॉलम में मैं वैलेंसी लिखता हूँ. देखो वैलेंसी कितनी आई इसकी, 1 आई, इसकी क्या आई,
0 बिकॉज ये कंप्लीटली फील्ड है। ओके अभी इसके लिए देखो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 and 1, बराबर है 2 and 1। तो इसके लिए देखो वैलेंसी कितनी आएगी, वैलेंसी कितनी आएगी 1 ही आएगी। देन नेक्स्ट लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम को देखो, बेरिलियम का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 4। ओके सो 2 and 2, तो कितना वैलेंसी आएगी इसकी 2 आएगी, बराबर है। तो एक एक एलिमेंट देखते हैं हम लोग। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। ओके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5, तो ये 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे। तो वैलेंसी कितनी आई उसकी, सब लोग देख रहे हो ना वैलेंसी कितनी आ रही है, तो 3। देन कार्बन के लिए कितना है 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ 2 and 4 ऐसे क्लासिफाई हो जाएंगे। कितनी वैलेंसी आई इसमें, 4 नंबर ऑफ वैलेंसी आई। ओके बट नाउ लुक एट दी नाइट्रोजन। जैसे हम लोग नाइट्रोजन पे आते हैं, बराबर है, नाइट्रोजन पे आते हैं, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन से 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बराबर है। अभी देखो यहाँ पे 2 5, ओके 2 and 5। अभी देखो इसमें वैलेंसी क्या लिखा हुआ है, सब लोग चेक करो क्या लिखा हुआ है वैलेंसी, इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है ना लास्ट में। ओके नाइट्रोजन में वैलेंसी कितना लिखा है 3। अभी क्वेश्चन नहीं आता है कि 3 क्यों लिखा हुआ है। ओके सो व्हाई दे हैव रिटन 3 वैलेंसी, बिकॉज ये देखो सब लोग ध्यान से देखो, नाइट्रोजन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7। ओके सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आएंगे और उसके बाद वाले ऑर्बिट में 5 आएंगे। तो ये देखो, ये सपोज फर्स्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए और बाद वाले इसमें कितने आए 1 2 सपोज 3 4 एंड सपोज दिस इज 5। तो मुझे बताओ ये जो 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये वो शेयर करना इजी है, 5 नंबर के जो इलेक्ट्रॉन्स, जो 5 नंबर 5 जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी एलिमेंट को देना इजी है, या दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से डायरेक्टली 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, बताओ मुझे। ओके मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को, मैं क्या पूछ रहा हूँ, दैट इन इट्स द ऑर्बिट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन का, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डोंट मर्ज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और वैलेंसी अलग है। ओके सो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कितने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है। ओके तो मुझे बताओ कौन सा इजी है, टू टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिट इज इजी, और टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट। ओके दूसरा कोई अगर एलिमेंट है, दूसरा कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट से उसके 3 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है या इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स उसको देना इजी है, बताओ। टेल मी, तभी समझ में आएगा ये कंसेप्ट, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के, ये 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे किसी एलिमेंट को शेयर करना आसान है, या फिर दूसरे एलिमेंट से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, विच वन इज इजी। संगम कौन सा इजी है, so it is easy to take three electron from the different element, okay दूसरे element से, rather than the sharing 5 electron, okay sharing a 5 electron, and I think same example is mentioned here, okay same example यहाँ पे वो दिया होगा। okay so देखो यहाँ पे that's why valency is what 3, so it is easy to take 3 electrons, it is easy to take 3 electrons। okay देन नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन के लिए 8 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6, so it is easy to take a 2 electrons, okay from outside, that's why the valency will be defined like, okay then ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन के लिए 9 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 2 7, it is easy to take 1 electron, okay but in case of नियॉन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नियॉन में जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है,
सो वैलेंसी उसकी क्या है, 0 है, उसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। ओके, सो इन द सेम वे यू कैन ड्रॉ फॉर द अदर। सोडियम के लिए Na के लिए एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 एंड 1। ओके, व्हाट इज द वैलेंसी, what is the valency for the sodium, what is the valency for a sodium, that is 1। okay, 1 क्यों आई है, ये 1 आपका, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे किसी के साथ वो शेयर कर सकता है। ओके, यहाँ पे वैलेंसी 7 नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे के लेना इजी है, इजी है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट के लेना इजी है, या इसका 1 एलिमेंट शेयर कर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को शेयर करना इजी है। So it is easy to share its 1 electron, okay, to other element. That's why, okay, valency is 1. That's why, देखो यहाँ पे अभी फिर से देखो, that's why lithium valency is 1। समझ में आया अभी समझ में आया आप लोगों को कि valency of lithium is why 1, क्योंकि ये एक इसका जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे किसी को शेयर करना इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना इजी है। ओके, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, यस, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, या तो शेयर कर सकता है या तो ले सकता है, दैट्स व्हाई बैलेंस इज 4। ओके, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ओके, यहाँ पे वैलेंसी 3 है, क्यों, बिकॉज नॉट इजी। ओके, यहाँ पे हम लोग वैलेंसी इसकी 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करना। ओके, और आप अगर चेक करोगे वैलेंसी तो देखो 4 के ऊपर किसी की वैलेंसी नहीं है, देख सकते हो आप लोग, बराबर है ना, 4 के ऊपर है क्या वैलेंसी, किसी की वैलेंसी है क्या 4 के ऊपर। ओके, सो बिकॉज 4 के ऊपर क्यों नहीं है, आइदर वो 4 मैक्सिमम यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वो शेयर कर सकता है, ओके, या तो वो ले सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ, इसीलिए आप देख सकते हो टेबल में। सो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन एटम has 7 electrons in its outermost shell and its valency could be 7, बराबर, इसकी वैलेंसी 7 हो सकती थी, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टीड ऑफ लूजिंग। ओके, फ्लोरीन में आप देख सकते हो, ओके, फ्लोरीन में आप देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर सकता है ये, बराबर, दूसरे के साथ ये क्या कर सकता है, इट इज इजी टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट, बराबर है ना, it is easy to take 1 electron from other element to complete its octet, okay, to complete its octet, and that's why hence the valency is determined by subtracting 7 electron from the octet, and this gives you a valency of 1 for 1 fluorine। okay, so valency can be calculated in a similar manner for oxygen के लिए भी आप देख सकते हो, okay, उसी हिसाब से निकाला है valency। okay, so what is the valency of oxygen that you get from this calculation, so valency is 2, बराबर है ना, so therefore an atom of each element has definite combined capacity, okay, definite combined capacity and call its valency, that is called as its valency। इस valency के ऊपर ही डिपेंड है कि ये किस एलिमेंट के साथ, तो किस दूसरे एलिमेंट के साथ ये कंबाइन हो रहा है, किस दूसरे एलिमेंट के साथ ये क्या कर रहा है, पेयरिंग फॉर्म कर रहा है। ओके, so in this way the valency is depends, okay, valency is determined। समझ में आया सब लोगों को।